डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या था, थोड़ा सा याद दिला दिया है। तो इस पर बेसिक प्रॉब्लम देखा जाए। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, it is also known as first mean value theorem of differential calculus, Lagrange's mean value theorem. If a function fx defined on closed interval ab such that number one, fx is continuous on closed interval a. Number two, fx is differentiable on open interval a. Then there exists at least one real number c such that one real number c lying between a and b such that f dash c is equal to fb minus fa upon gb minus c. ये था स्टेटमेंट पहला। c is less than b and greater than a. ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है कि if a real value function fx which is defined on closed interval ab satisfying two conditions. Number one, function should be continuous on closed interval ab. Function should be differentiable in open interval ab. अगर ये दोनों कंडीशन satisfied हो रहे हैं, then Lagrange's mean value theorem states that there exists at least one real number c between a and b such that f dash c is equal to fb minus fa upon gb minus ga. इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें तो another form of Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. इसी स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग हम लोग कर लेते हैं। चेंजिंग क्या कर रहे हैं कि जो ये कहा है कि if function fx defined on closed interval ab, closed interval ab के बजाय a plus h ले जाए, closed interval a plus h such that function is continuous in closed interval a plus h. Function is differentiable in open interval a plus h. Then there exists, अगर हम क्लोज इंटरवल a b के बजाय b की जगह हम a plus h ले लें तो क्या होगा, हम ये बात करें। तो अगर हम b की जगह a plus h ले लेते तो यह कंडीशन हो जाएगी a is less than c is less than a plus h. इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर इस पूरे में से a सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिलेगा 0 is less than c minus a is less than a plus h में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, या इसको हम h से डिवाइड कर दें तो जगह 0 is less than c minus a upon h is equal to theta c, that is less than, या आप ये मान लिया इसका मतलब ये होगा कि 0 is less than theta is less than 1 where we have say that
थीटा इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन एच, और इससे सी माइनस ए इज इक्वल टू थीटा एच, और इससे सी इक्वल्स ए प्लस थीटा एच। ओके, इस तरह अगर हम इस स्टेटमेंट में चेंजिंग करते हैं, हम ये कहते हैं कि फंक्शन f(x) डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a plus h satisfying the conditions. Number one, function is continuous in closed interval a plus h. Number two, function is differentiable in open interval a plus h. Then there exists a value theta lying between 0 and 1. A value theta in case of c, a value lying theta lying between 0 and 1, such that f dash c is equal to आपने क्या रखा है a plus theta h, तो जाएगा f dash a plus theta h is equal to and b is equal to आपने क्या रखा है a plus h minus f a upon g sorry it is b minus very sorry b minus तो b इक्वल आपने क्या रखा है a plus h और माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा आपका f डैश a plus थीटा h इज इक्वल टू f a plus h माइनस f a अपॉन h, या इसको आप एक्सपोनेंशियल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें h into f dash a plus theta h a plus theta h is equal to जाएगा f a plus h minus f a, या इसको ऐसे लिख सकते हैं f a equal to f a plus h minus h into f dash a plus theta h a plus theta ऐसे भी लिख सकते हैं, where theta is less than 1 and greater than 0, and it is known as another form of Lagrange's mean value theorem। मतलब अगर इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग करें, b की जगह a plus h कर दें, तो c की जगह आ जाएगा थीटा, जहाँ b आपका c का है that lies between a and b, and थीटा वहाँ हो जाएगा that lies between 0 and 1, और उस कंडीशन में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का नेक्स्ट फॉर्म आएगा, वो आपके सामने लिखा हुआ है कि f a इक्वल हो जाएगा f a plus h minus h into f dash a plus theta h, that is the another form of Lagrange's mean value theorem। या इसको अब इस पर बेस तो प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नंबर 1 ये क्वेश्चन, verify Lagrange's mean value theorem, for the following functions। Number one, f(x) equals x minus 1 x minus f(x) equals x minus 1 x minus 2 for every x belongs to closed interval 0। Question number 2 is f(x) equals under root x square minus 4 for all x's belongs to closed interval 2, 4। Find the value of c with the help of Lagrange's mean value theorem, or you say verify Lagrange's mean value
सॉल्यूशन की बात करते हैं। नंबर 1 पर वी है fx equals x minus 1 x minus 2 पर पूर्ण इंटरवल 0 या दिया गया। मल्टीप्लाई करके देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं fx equals x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, यहाँ जाएगा -2x -x मतलब -3x हो जाएगा, और -1 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 हो जाएगा। या थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करेंगे तो fx इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं x³ -3x स्क्वायर प्लस 2x। क्या फंक्शन, क्योंकि यह दिया गया फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और अगर यह पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका मतलब यह कंटीन्यूअस भी है और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो ऑब्वियसली लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों क्राइटेरिया को सैटिस्फाई करता है। सिंस fx is polynomial in x, therefore it is continuous and differentiable for the given interval। ये क्या है? अब since fx is a polynomial function in x, therefore it is continuous and differentiable for the given interval. Now, for the given interval, therefore now f dash x equals f dash x देखने के लिए जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस r, या therefore f dash c equal to 3c square minus 6c plus by Lagrange's mean value theorem। Lagrange's mean value theorem से देखेंगे तो आपको चाहिए क्या है? fx f dash c is equal to क्या होगा? fp b equals half f half minus f a is 0 upon b minus a, that is half minus 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना, f डैश दिया आपके पास है, f हाफ आपको कैलकुलेट करना। f हाफ क्या होगा? सिंस fx equals x minus 1 x minus 2 and therefore f half is equal to हो जाएगा हाफ into half minus 1 और ये हो जाएगा आपका हाफ माइनस 2 and that is equal to half minus 1, that is minus 1 and half minus 2, that is minus 3 by 2। टोटल सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 by 8 minus 2। अब यह हाफ हो गया, f0 निकाला जाए एंड f0 क्या हो गया? जब fx इक्वल्स था तो f0 क्या हो गया? 0 0 minus 1 and 0 minus 2 and that is finally 0। या गया। Therefore f dash c is 3c square minus 6c plus 2 is equal to f half, that is 3 by 8 minus f0, that is 0 upon b minus a means half minus 0, that is equal to half। कुल मिला के हो जाएगा 3 by 8 into
2/1 and that is finally 3/4. इतना आ गया. और यू राइट 3c² minus 6c plus 2 minus 3/4 is equal to 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3c² minus 6c plus 2 minus 3/4 कर दो, 4 2 जा 8 minus 3, तो 8 minus 3 that is 5/4. इतना आ गया इज इक्वल टू 0. या 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 12c² minus 24c plus 5 इज इक्वल टू 0. ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करेंगे. श्रीधर लगा दीजिए. therefore c equals minus b that is 24 plus minus under root b², 24 into 24 minus 4ac 4 into 12 into 5 upon 2a 2 into 12. इसको सिंप्लीफाई कर लें तो c की वह वैल्यू आ जाएगी जो हमको ऑब्टेन करनी है. इससे c की 2 वैल्यूज मिलेंगी, उसमें से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जो इस दिए गए इंटरवल के अंदर आएगी और उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं. ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. सेकेंड पार्ट में सॉल्यूशन पे आते हैं. इसको भी देखते हैं. नंबर 2 f(x) इक्वल्स है √x² minus 4. यहाँ से आप ये है आपके पास. therefore f2 आपको चाहिए तो x = 2 रखेंगे तो यह 4 - 4 0 हो जाएगा. f2 = 0 आ जाएगा. यह 4 निकालेंगे तो यह 4 क्या होगा वो भी देख लिया जाए. f4 x की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 minus 4. 16 minus 4 करेंगे तो आएगा 12. 12 का इसको रूट लेंगे तो हो जाएगा 2√3. संभवतः इतना आ जाएगा. यह आ गया आपका. b - a करेंगे. b - a करेंगे. b की जगह आपके पास है 4 और a की जगह है 2, तो फाइनली आ जाएगा 2. लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से यहाँ से फिर देखेंगे f'(x) निकालेंगे. सब चीज़ जल्दी f'(x) करेंगे तो हो जाएगा हाफ x² - 4 to the power -½ इतना आ जाएगा. और x² - 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. फाइनली आ जाएगा x/√x² - 4. ये हो गया आपका. तो f'(c) क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं. f'(c) हो जाएगा c/√c² - 4. अब आप लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है वो आप जानते हैं. लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आप कह सकते हैं बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है. f'(c) = fb - fa upon b - a. या तो आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. अब आप यहाँ कह सकते हैं हियर in place of a there is 2, in place of b there is 4, b = 4. तो therefore लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम किस फॉर्म को टेकअप करेगा तो f'(c) = हो जाएगा f4 minus f2 upon 4 - 2. यह जाएगा. f'(c) क्या है वो आप बता सकते हैं. c अपॉन कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी √c² - 4 is equal to f4 that is already calculated 2√3 minus f2 that is already calculated 0 4 - 2 that is 2. सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा √3. तो स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड का तो c² अपॉन c² - 4 is equal to आ जाएगा 3. और यू राइट c² = 3c² - 12. 3c² को लेफ्ट में लाएं तो हो जाएगा -2c² = -12 और इनमें से c² = 12. c² = 12 हो जाएगा. सॉरी c² = हो जाएगा 6. 2 6 12. तो c इक्वल हो जाएगा +- √6. कितना आ जाएगा
अब डिसाइड करना कि सी की जो दो वैल्यूज मिली हैं, क्या उनमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो इस दिए गए इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि लैग्रेंज मीन वैल्यू आपके कहता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी व्हिच लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो √6 का जो स्पेसिफिक मान होगा वो आप सोच सकते हैं। तो एक प्लस √6 है, दूसरा माइनस √, तो माइनस तो इसमें कहीं आएगा नहीं। इसका मतलब C इक्वल्स प्लस √6, मतलब हम सिंपली कहें √6 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू बाय द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट देखा जाए कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। इफ टू फंक्शंस f(x) and g(x) defined on closed interval ab such that number 1 f(x) and g(x) f(x) and g(x) are continuous in closed interval ab. Number 2 f(x) and g(x) are differentiable in open interval ab. Number 3 g(x) not equal to 0 for any x belongs in closed interval ab. Then there exists at least one real number small c between a and b such that f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa upon gb minus ga. This is the statement of Cauchy's mean value theorem. पहला कहा जा रहा है if two functions f(x) and g(x) defined on closed interval ab such that number 1 both the functions should be continuous in closed interval ab. Number 2 both the functions should be differentiable in open interval ab. Number 3 for any x which belongs in closed interval ab, derivative of the function gx should not be equal to 0. Means g dash x should not be equal to 0 for any x belongs in closed interval ab. Then there exists at least one real number c between a and b such that f dash c upon g dash c is equals fb minus fa upon gb minus ga.
अगर हम प्रूफ की बात करें तो उस कंडीशन में एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर का व्हाट एफ एक्स इज इक्वल टू, और वी कंसीडर ए फंक्शन फाई एक्स सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, where A is undetermined constant such that phi A is equal to phi B का एक फंक्शन कंसीडर करते हैं फाई एक्स, और फाई एक्स जो फंक्शन लिया दैट इज द सम ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स वही फंक्शंस हैं जिनके बारे में स्टेटमेंट में बोला गया है ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस उस दिए गए इंटरवल में, और दोनों ही फंक्शंस उस दिए गए इंटरवल में डिफरेंशिएबल हैं। लेकिन आप देखेंगे जी एक्स में हम एक अननोन कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई किया गया, अनडिटरमाइंड कांस्टेंट कहा गया है। इसका मतलब हुआ कि ए को हमें डिटरमाइन करना होगा। तो कहा गया इस प्रकार से कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। अगर फाई ए इज इक्वल टू फाई बी ले रहे हैं मानते हुए, तो इसके अंदर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे ए, और एक्स की जगह क्या रखेंगे बी का, दैट इज ये कहाँ x की जगह है रखेंगे तो फाई ए मिलेगा, फाई ए इज इक्वल टू मिलेगा एफ ए प्लस ए इंटू जी ए, और फाई बी क्या होगा वो भी आप बता सकते हैं, एफ बी प्लस ए इंटू जी बी। इतना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो जी बी को ए जी बी को लेफ्ट में लाए और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू, और ये हो जाएगा आपका जी बी माइनस जी। इसको राइट में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिलेगा एफ बी माइनस ई एफ ए, या यहाँ से आप कह सकते हैं और कि माइनस ए इज इक्वल टू जो हमको मिलेगा हो जाएगा एफ बी माइनस ई एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये माइनस है। अब आप थोड़ा सा विचार करें कि जो फंक्शन आपने कंसीडर कर रखा है इस फंक्शन के बारे में, फाई एक्स इक्वल्स आपने कहा है सम ऑफ टू फंक्शंस। चूंकि जी एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, आपको ये भी पता कि कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी कंटिन्यूटी पर या उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पर असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब एफ एक्स भी कंटिन्यूअस, ए जी एक्स भी कंटिन्यूअस, एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल, ए जी एक्स भी डिफरेंशिएबल। इसका मतलब फाई एक्स इज द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस। और अगर फाई एक्स सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब फाई एक्स भी कंटिन्यूअस, बिकॉज़ वी नो दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। इट मींस फाई एक्स इज कंटिन्यूअस एंड फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल। Thus since phi x is continuous in closed interval a b, differentiable in closed interval a b, and phi a is equal to phi b. Therefore, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied.
and hence there exists at least one real number C between A and B such that phi dash C is equal to 0. Let's say it is equation number 4. But from 1 phi dash x equals f dash x plus a into g dash x. Therefore, phi dash c is equal to f dash c plus a into g dash c is equal to 0 from equation number 4. And therefore, minus a is equal to f dash c upon g dash c. जो अनडिटरमाइंड कांस्टेंट था वह अब क्या हो गया, डिटरमाइंड हो गया. चाहे यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा वो देख लीजिए. आपको मिल जाएगा इन इक्वेशन 1 नहीं, इन इक्वेशन 3. इन इक्वेशन 3 तो माइनस ए की जगह हम लिख सकेंगे एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी. ये हो गया और यही आपको प्रूफ करना था. लेकिन आपने जो यहाँ स्टेटमेंट दिया कि सिंस फाई एक्स इज द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1 देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. साथ ही साथ आपने यह भी कह रखा था फाई ए इक्वल टू फाई बी. इसका मतलब दिए गए इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है. इसका मतलब रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रही हैं. और अगर रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो रोल्स थ्योरम कहता कि ए और बी इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा. तो हम लोगों ने कहा दिया फाई डैश सी इज इक्वल टू 0. लेकिन अब फाई डैश सी हमको मिलेगा कैसे, तो कहा इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में. तो फाई डैश एक्स इक्वल्स आ गया एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स. अब फाई डैश एक्स में अगर एक्स की जगह सी कर दो तो फाई डैश सी मिल जाएगा. तो फाई डैश सी इक्वल्स हो गया एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई डैश सी फ्रॉम इक्वेशन 4 फाई डैश सी इज इक्वल टू 0. तो फाई डैश सी की जगह 0 करेंगे तो आपको मिलेगा एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी इज इक्वल टू 0. अब वहाँ से आप जो अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट है ए को आप डिटरमाइन कर सकते हैं और देखते हैं कि ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी. अब ये जो माइनस ए की वैल्यू मिली एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी उसको हम ला करके इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो जो हमारा कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम था वो हमारा प्रूफ हो जाएगा. हाँ, अनदर फॉर्म ऑफ कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, जैसे आपने पिछले में किया लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है वैसे ही आप कॉसीज मीन वैल्यू थ्योरम में कर सकते हैं कि अगर बी की जगह हम ए प्लस एच ले लें तो यहाँ भी एक पॉइंट हमको थीटा मिलेगा which lies between 0 and 1 and such that we can say that if two functions fx and gx which is defined on closed interval a plus h satisfying the conditions number 1 fx and gx both are continuous in closed interval a plus h, number 2 fx and gx both are differentiable in open interval a plus h, and number 3 g dash x is not 0 for any x belongs in closed interval a plus h. Then there exists a real number theta which lies between 0 and 1 such that f dash a plus theta h upon g dash a plus theta h is equal to आपको मिलेगा f a plus h minus f a upon g a plus h minus g a where theta lies between 0 and 1. ये कर सकते हैं, नहीं तो अगले टर्म पे हम लोग इसको करेंगे और उसके साथ प्रॉब्लम भी देखेंगे. थैंक्स.